ये लाइव ऑन यूट्यूब आ गया नोटिफिकेशन, आगे लाइव हो गया चलो चेक कर रही हूँ भाई। सर ये स्टार्टिंग हो गया इंस्टा स्टार्टेड। शुभ हेलो The net isn't working. Good morning, everyone. I am Srishti Turak, student of grade 7th from Jaju International School and host of this program. I welcome you all on behalf of Jaju International School for live talk show on cancer awareness. There is a dramatic change happening in the environment around us. We have all encountered a change in dietary and food habits, our working habits, behavioral habits, etc. All these changes are somehow directly or indirectly dependent on the environment and affecting our body. And thereby, many of us suffer from various unknown health disorders. Considering this point, we have come up with the talk show to discuss about a health disorder named cancer. As we all know, February 4th of every year is observed as an International Cancer Day. Cancer is rapidly spreading amongst the population and is proving lethal also to the human race. Early detection is essential in its management and treatment. Therefore, it is important to set cancer literacy and knowledge amongst the population. And for this, we have with us eminent gynecologists from Yavatmal, Dr. Varsha Chauhan ma'am and Dr. Preeti Kabra ma'am. Now, I would like to call Shilpa Jaju ma'am, Principal of Jaju International School, to welcome and felicitate Dr. Varsha Chauhan ma'am. Dr. Varsha Rohidas Chauhan ma'am, OB gynecologist, worked as lecturer at Shri Vasantrao Naik Government Medical College, Yavatmal. Now working as consultant and director of Ashirwad Maternity Home. Now I would like to call Vice Principal of Jaju International School, Mr. Ashwin Jagtap sir, to felicitate Preeti Kabra ma'am. Dr. Preeti Sunil Kabra ma'am, practicing in the field of OB gynecology more than 16 years. She was formerly the president of Yavatmal Obstetrics Society in 2018-19. She has received National Sadhana Desai Award for Best Work in Contraception Promotion and State Level Best Society Award during the tenure. We welcome you, ma'am. I
Jaju ma'am. Thank you everyone for patient listening. With this warm welcome and due permission, I would like to start with the today's talk show. Dear viewers, if you have any kind of question or doubt during the talk show, you are requested to mention those in comment section. After 30 minutes of talk, we will be having 50 minutes of question and answer session where your doubt will be resolved. Now, Preeti ma'am, I would like to ask you, what is cancer? And is there any specific body part where we get cancer? And why do some people suffer from cancer disorder? गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी में बात करना चाहूँगी ताकि सभी व्यूअर्स इजीली लैंग्वेज समझ सकें। कैंसर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट की कोशिकाएं अगर अनियमित रूप से बढ़ती हैं या उनकी वृद्धि होती है तो उसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर हमारे बॉडी में कोई भी पार्ट में हो सकता है। रिसर्च के अनुसार 200 से भी ज़्यादा कैंसर पाए गए हैं, पर सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाले महिलाओं में जो कैंसर है, जैसे स्तनों का कैंसर और गर्भाशय का जो मुख होता है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर, आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो नियमित रूप से विभाजित होती हैं, पर इनका विभाजन अगर किसी कोशिका में कोई डैमेज हो जाए, उनका म्यूटेशन डिस्टर्ब हो जाए तो वो अनकंट्रोलेबल बढ़ती है और उनकी अनियमित वृद्धि होती है और ये अनियमित वृद्धि कोशिकाओं की कैंसर में रूपांतरित होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। वर्षा मैम, हमें ये पूछना है आपसे, कैंसर जो है वो स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को? एक्चुअली कैंसर एक ऐसा रोग है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं होता है। बट सपोज इफ यू हैव अ कैंसर ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गन, अगर हमको किसी ऑर्गन का कैंसर है तो डेफिनेटली इट कैन स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द सेम पर्सन। ओके, सो इट हैज द एबिलिटी टू स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स एंड बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द स्प्रेड्स। एक तो वो डायरेक्ट स्प्रेड होता है, जो एडजेसेंट ऑर्गन्स रहते हैं नियर बाय उनको स्प्रेड हो सकता है, बिकॉज जो कैंसर सेल्स रहते हैं दे हैव गॉट द कैपेसिटी ऑफ इन्वेडिंग, तो जो भी सराउंडिंग या नेबरिंग स्ट्रक्चर्स है उनको स्प्रेड होता है। दूसरा जैसे रहता है, हमको मालूम है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो दूसरा जो एक स्प्रेड होता है ना कैंसर का, दैट इज थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब जो नियर बाय लिम्फेटिक नोड्स है उनको जाता है। एंड थर्ड वन इज अ हेमाटोजेनस स्प्रेड, सो दैट इज अ स्प्रेड थ्रू द ब्लड, मतलब जो हमारे रक्त के द्वारा स्प्रेड होता है। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड ऑफ अ कैंसर इन अ सेम पर्सन। वी कैन नॉट कॉल इट एज अ डायरेक्ट स्प्रेड, बट वी कैन ट्रांसमिट सम वायरसेस। वन ऑफ देम इज कॉमनेस्ट HPV virus, second one is hepatitis virus, hepatitis B and hepatitis C. These are the 2 other viruses which can be spread from one person to the another person. If a person has got a good immunity, will come out of it. Okay, but suppose if you have a low immunity, then that person after many years may get a cancer. Okay. Thank you, ma'am. Now, Preeti ma'am, I would like to ask you, can cancer can we get from what we eat? Does it depends on our diet? Yes, our lifestyle and dietary habits are very important, but not exactly all the cancers we get through the diet, but the lifestyle, हमारी जो जीवन शैली है उसको हमें एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद, क्योंकि कैंसर का खतरा बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता है, इसलिए ये जरूरी है कि बढ़ती उम्र के साथ हमें हमारा डाइट नियंत्रित रखना चाहिए, हमने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए, जैसे व्यायाम, योगा, प्राणायाम, हाई प्रोटीन एंड फाइबरस डाइट, कडधान्य। आजकल ये बहुत नोट हुआ है यंग पर्सन्स में भी और बहुत लोगों में कि फैमिली में डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं रहती है, डिस्टर्ब है, मतलब देयर फूड हैबिट इज नॉट कंट्रोल।
प्रिजर्वेटिव फूड का चलन बहुत बढ़ गया है। फास्ट फूड आजकल यंगस्टर्स में हम देखते हैं कि रूटीन हो गया है। तो जो पौष्टिक आहार है वो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। अभी हमें वो नोटिफाई नहीं होता है, लेकिन एज द कैंसर रिस्क इंक्रीजेस विद द एज के साथ कैंसर रिस्क बढ़ता है। इसलिए डाइटरी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपना डाइट अगर शुरुआत से हम संतुलित रखें तो वो हमें कहीं ना कहीं कैंसर से प्रिवेंट करने में मदद ही करता है। थैंक यू मैम। एक आखिरी क्वेश्चन है जो मुझे पूछना है कि वेदर कैंसर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, और इसका कोई स्पेसिफिक एज होता है, ऐसा होता है क्या? Actually, cancer is not, we cannot say that it is a genetic disorder, but there are certain genes in our body which basically predisposes ourselves to a cancer. Okay, suppose like if we take an example of a carcinoma cervix or carcinoma breast. Suppose if your mother has, your sister has, or your aunt has, then definitely that girl child is more predisposed to have a carcinoma breast or a carcinoma cervix. But that is only not a genetic predisposition. But suppose if you have a genetic genes which are predisposing, with that if she is exposed to the other oncogenic factors, then definitely she is at a risk of having a carcinoma as age advances. And as Preeti Madam has told that there is definitely a role of diet. If she does not take a proper diet, sedentary lifestyle, then definitely these are the factors which works in together actually. So advancing age, faulty diet, especially if you take a processed meat, red meat, then that is more basically increases the carcinogenicity. And second thing is arsenic, which basically comes from the water. Okay, these are the two things in the diet. Preeti ma'am, now lastly I would like to ask you, which are common types of cancer seen in humans across the world, and which are common types of cancer seen in females across the world? See, there are a number of cancers, but the most common type of cancer which we see across the world, which are responsible for mortality, is the number one is cancer breast, and number two is lung cancer. Lung cancer has very high rate of mortality in our country as well as in USA. There are very notification rate of increasing CSR lungs because of the lung cancer. Many mortality rates are noted. But if we talk about particularly in female, महिलाओं में ज़्यादा होने वाला कैंसर है, उसमें नंबर वन पे अगर हम देखें तो कार्सिनोमा ब्रेस्ट यानी स्तनों का कैंसर, नंबर टू पे देखें तो गर्भाशय के मुख का कर्करोग जिसे हम सर्वाइकल कैंसर, ये दो कैंसर लीडिंग है कैंसर की मोर्टेलिटी में और महिलाओं को अफेक्ट करने में। तीसरा कैंसर ये भी है कि अगर गर्भाशय का या अंडकोशिका कैंसर हो जिसे हम ओवेरियन कैंसर कहते हैं, इससे भी काफ़ी महिलाएं अफेक्ट होती हैं और ये भी एक कैंसर ऐसा है जो महिलाओं में ज़्यादातर नोटिफाई होता है। Thank you ma'am. Vartha ma'am, now I would like to ask you to please brief us about cervix cancer, उसके symptoms और कोई उससे कैसे ठीक हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर मतलब एक्चुअली गर्भाशय के मुख का कैंसर. ओके, इट इज द लोअरमोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, दैट इज वी कॉल इट एज अ सर्विक्स. ओके, and basically it is very common in all the females, as Preeti madam has told. The most common is the CA breast, and the next one is the CA cervix. Okay, basically there are, the incidence is very common. Okay, if we consider all over the world, almost 13.1, out of which maximum cases are there in the India, because it is very common in the developing countries, and in India it is almost 6.9. Okay, almost 96,922 cases are detected every year. Mortality and morbidity is very high. If we calculate, there is a single death every 8th minute because of carcinoma of cervix in our country. And why it is so? Because we are not so much aware about the carcinoma of cervix. The screening modalities are not up to the mark in our country. So as a citizen of India and even as a doctor, I feel
that we should make awareness to each and every girl, a woman of her country, so that she can come to the doctor for the screening. And there is something also called as a prevention. So rather than diagnosing it at earlier stage, we should focus on the prevention of the carcinoma of the cervix. There are different etiologies. Madam has already told, even I have mentioned, that carcinoma is always seen with the advancing age. It is बेसिकली हमारी जैसे उम्र बढ़ती है तो ज़्यादा इंसिडेंस रहता है कार्सिनोमा सर्विक्स का. सेकंड, आपलं जसं वय वाढतं तसं आपल्याला कॅन्सर होण्याची भीती जास्त असते. दुसरं म्हणजे कसं आहे, इट इज रिलेटेड टू द सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे जर मुलीचं खूप कमी वयात लग्न झालं असेल, तिला जर खूप मल्टिपल सेक्शुअल पार्टनर्स असतील, नंबर ऑफ प्रेग्नन्सी जास्त असतील, तर निश्चितच गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा जास्त होऊ शकतो. आणि याचं कारण आहे एक्सपोजर टू द ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस. आता ह्याच्यामध्ये बऱ्याच स्ट्रेन्स आहेत. बेसिकली हा जो व्हायरस आहे हा सेक्शुअली ट्रान्समिटेड असतो आणि बेसिकली इट इज ट्रान्समिटेड थ्रू द सेक्स. पण जर आपली प्रतिकार करण्याची शक्ती जर चांगली असेल तर हा आजार पूर्णपणे बरा होतो. पण याच्यासोबतच जर आपल्याला दुसरे काही प्रिडिस्पोजिंग फॅक्टर्स असतील, जसं आता आपल्या देशामध्ये तर स्मोकिंग खूप कॉमन नाही आहे, पण वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये स्मोकिंग आणि इवन वुमेन्स हॅव्हिंग ड्रिंक्स इज व्हेरी कॉमन. सो अल्कोहोल इज पण एक प्रिडिस्पोजिंग फॅक्टर आहे. तसंच जेनेटिक हिस्ट्री कॉमन आहे. जर आईला, बहिणीला, आत्याला, आजीला कुणाला जर गर्भाशयाचा मुखाचा कर्करोग झाला असेल तर ती प्रिडिस्पोजिंग असते. नंबर ऑफ प्रेग्नन्सीज, ती किती वेळा प्रेग्नंट राहिली, हा पण एक प्रिडिस्पोजिंग फॅक्टर आहे. नंतर समजा जर कुठल्याही स्त्रीला हा आजार झाला, जेव्हा HPV व्हायरसचं संक्रमण तिला होतं ना, तेव्हा बऱ्याचदा ह्या स्त्रिया असिम्प्टमॅटिक असतात, त्यांना कुठलाही त्रास होत नाही, त्यामुळे त्या डॉक्टरांकडे सुद्धा जात नाही. आणि ऑलमोस्ट 15 ते 20 वर्षाचा कालावधी असतो जो की आपल्याकडे असतो. त्या पिरियडमध्ये जर समजा तुमची प्रतिकार करायची चांगली शक्ती असेल, तुम्ही आहार योग्य घेत असाल, योगा व्यवस्थित करत असाल, तर तुम्ही त्याच्यातनं पूर्णपणे बरा होता. पण समजा जर तुम्हाला दुसरा काही प्रिडिस्पोजिंग फॅक्टर असेल तर मग तुम्हाला ते जसं तुमचं वय वाढतं त्यानुसार मग तुम्हाला सिम्पटम्स येतात. तर ह्याच्यामध्ये इवन ज्या स्त्रिया गर्भनिरोधक गोळ्या खूप वर्ष घेतात त्यांना सुद्धा हा जास्त कॉमन असतो त्यांच्यामध्ये. आणि सिम्पटम्स जर आपण विचार केला ना, तर सुरुवातीच्या स्टेजला पेशंट अगदी असिम्प्टमॅटिक असते, म्हणजे तिला काही त्रास नसतो. किंवा मग अगदी सुरुवातीला स्त्रियांना व्हाईट डिस्चार्ज, आपण जो म्हणतो ना पांढरा पदर, तो तिला त्रास असतो. त्यानंतर जर समजा जर तिला पांढरं पाणी जात असेल आणि त्याला जर गुडघ्यात असेल, तो जर ब्लड स्टेंड असेल, त्यासोबत जर तिला ओटी पोटामध्ये वेदना होत असतील, तिला जर कंबरदुखीचा त्रास असेल, तिचं समजा जर जसं आता ह्या प्रत्येक जो सिम्पटम्स असतात ना, म्हणजे होणारा जो त्रास असतो रुग्णाला, तो ऍक्च्युली कॅन्सरच्या स्टेजवर अवलंबून असतो. तर सुरुवातीच्या स्टेजला तिला एवढा विशेष त्रास नाही राहत, पण जसा जसा स्टेजिंग वाढतं किंवा त्याची स्प्रेड वाढते तसे तसे मग सिम्पटम्स वाढतात. जसं मी सांगितलं की डायरेक्ट स्प्रेड जर झाला तर समोर युरिनरी सिस्टीम असते, मूत्राशयाला स्प्रेड, किंवा मागे मग आपलं जेनाटो बेसिकली रेक्टम असतं, तिथे स्प्रेड झालं तर मग नंतर युरिनरी सिम्पटम्स किंवा कॉन्स्टिपेशन हे सिम्पटम्स होतात. आणि दुसरं म्हणजे ना, बऱ्याचशा स्त्रियांना पोस्ट कॉयटल ब्लिडिंग, म्हणजे रिलेशन झाल्यानंतर जर तिला रक्त मिश्रित त्राव होत असेल तर हे पण एक सिम्पटम असू शकतं. तर मला हे सांगायचं आहे की कुठल्याही स्त्रियांना जर पांढरा पदर होत असेल किंवा व्हाईट डिस्चार्ज होत असेल तर तिने बेसिकली डॉक्टरांकडे जायला पाहिजे. हे झाले सिम्पटम्स. पण आपण जर सायन्स म्हटलं, सायन्स म्हणजे समजा आमचा एखादा रुग्ण आमच्याकडे आला तर आम्ही त्याची एक्झामिनेशन करतो आणि जे पाहतो, आता गर्भाशयाचं मुख कसं आहे आपल्याला दिसत नाही. समजा आता जसं आता स्किन कॅन्सर किंवा कुठे दुसरीकडे गाठ आली तर ती कशी आपल्याला दिसते, आपण त्याला बघू शकतो, पण गर्भाशयाचं मुख आपल्याला दिसत नाही. त्याच्यामुळे काही त्रास असेल तर डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर आम्ही त्यांचं ऍक्च्युली पर स्पेक्युलम एक्झामिनेशन करतो आणि आम्ही गर्भाशयाचं मुख बघतो. जर ते ॲब्सोल्युटली नॉर्मल हेल्दी सर्व्हिक्स असेल, पिंक असेल, त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारची जखम नसेल, तर याचा अर्थ तिला की त्याच्यामधनं जर ब्लिडिंग होत असेल तर डेफिनेटली त्या स्त्रीला गर्भाशयाचा मुखात कॅन्सर म्हणजे कॅन्सर असू शकतो. आणि आता हे झालं एक इनिशियल सस्पेक्ट
सस्पिशन, पण ह्याच्यावरच आपण थांबायला नाही पाहिजे. जर समजा ह्याच्या पुढे आपल्याला त्याचं डायग्नोज करायचं असेल तर देन कम्स इज द डायग्नोस्टिक मोडॅलिटीज. तर त्या रुग्णाची आपण पहिल्यांदा पॅप्समियर ही टेस्ट केली पाहिजे, नंतर HPV DNA टेस्टिंग केलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये जर काही सस्पिशन आलं तर मग आपण तिचं कॉल्पोस्कोपी म्हणजे जस्ट आपण मॅग्निफाय करतो गर्भाशयाचं मुख. त्याच्यामध्ये 2 टेस्ट असतात, एक तर आपण ॲसिटिक ॲसिड टेस्ट करतो आणि दुसरी असते ल्युगॉल्स आयोडीन टेस्ट. आता ह्या टेस्ट ॲक्च्युली प्रत्येकाला माहीत असणं गरजेचं आहे असं नाही, पण ॲटलिस्ट आपल्याला असा काही त्रास असेल तर आपण डॉक्टरांकडे जायला पाहिजे आणि हा टेस्ट करून घ्यायला पाहिजे. एवढं तरी त्यांना कल्पना असली तरी आपण याचा इन्सिडेन्स आणि त्याच्यापासून जी होणारी मॉर्बिडिटी मॉर्टॅलिटी आहे हे निश्चितच कमी करू शकतो. Thank you so much, ma'am. Preeti ma'am, now I would like to ask you to throw some light on ovarian cancer. घरगुती इलाज करके वो सोचती है कि हो जाएगा, लेकिन ये इलाज अगर ये सिम्टम्स को हम निग्लेक्ट करते जाए और लेट डॉक्टर के पास पहुंचे और बाद में अगर हमारे समझ में आए कि अरे, तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है. इसलिए मैडम ने बहुत सही बताया कि हमारा मेन मोटो है कि आपको अवेयरनेस करना, आपको अवेयरनेस हो जाना चाहिए कि क्या तकलीफ हुई तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अब अगर आपको इसमें से कोई भी परेशानी है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले जैसे मैडम ने बोला हम पेशेंट का पेल्विक एग्जामिनेशन करके देखते हैं. अब पेल्विक एग्जामिनेशन यानी एक प्रकार का सादा इंटरनल चेकअप रहता है महिलाओं का. तो बहुत बार छोटी गठानें तो पेल्विक एग्जामिनेशन में नहीं समझती है, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी गठान हो तो पेल्विक एग्जामिनेशन में हमको वो फील होता है कि पेशेंट को कहीं सिस्ट है, कहीं उसको खिंचाव है, तो तुरंत हम उसका अगला टेस्ट. और ओवेरियन कैंसर के लिए बेस्ट मोडालिटी डायग्नोज करने के लिए वो है इमेजिंग टेस्ट. तो एक ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी होती है जिसे हम TVS स्कैन बोलते हैं. अगर आपके डॉक्टर को कुछ गठान फील हो और अगर वो आपको TVS का सलाह दे या कोई गठान नहीं भी फील हो रही पर आपको परेशानी है, पेट में खिंचाव है, तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप अल्ट्रासोनोग्राफी कर लो या TVS स्कैन कर लो. तो TVS स्कैन करने के लिए आप झिझके नहीं, आप ये एक सादी इमेजिंग मोडालिटी है. तो इसमें आप जो ओवेरियन कैंसर है वो अर्ली स्टेज में भी अपने ध्यान में आ जाता है. और इलाज के लिए कैंसर का स्टेजिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है. अगर हम कैंसर को अर्ली यानी कि फर्स्ट स्टेज में कैच करते हैं तो ये पूरी हद तक भी हमको ये बीमारी से छुटकारा दिला सकता है. तो सबसे बेस्ट मोडालिटी है कैंसर ओवरी की डिटेक्ट करने के लिए वो है इमेजिंग मोडालिटी. और उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं. जैसे ब्लड टेस्ट में एक CA-125 नाम का ट्यूमर मार्कर होता है. अगर ये टेस्ट अपनी बढ़ के आए तो ये हमारे को फेवर में जाता है कि ओवेरियन कैंसर हो सकता है. इसके अलावा इमेजिंग मोडालिटी में CT स्कैन है, नीचे के भाग का पेल्विस का MRI हम कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों से हम अपने रोग को डायग्नोज कर सकते हैं. अब सेकेंडली कि कौन सी महिला ऐसी है जो ओवेरियन कैंसर के लिए प्रीडिस्पोजिंग है, यानी किस में ये खतरा ज़्यादा है. तो सबसे पहले मैडम ने बताया कि जेनेटिक्स यानी कि अगर हमारे फैमिली में हिस्ट्री है, जैसे माँ को, बहन को, इवन अगर उनको स्तनों का भी कर्करोग है तो ऐसी महिलाएं ओवेरियन कैंसर के लिए भी प्रीडिस्पोजिंग है. तो अगर घर में किसी को ओवेरियन कैंसर है या स्तनों का कैंसर है तो ऐसी महिलाओं में तो थोड़े भी सिम्टम्स आने पर अवेयर रहना चाहिए और अपना चेकअप कर लेना चाहिए. सेकेंडली हमको ब्लड लेवल में अगर कैल्शियम लेवल चेक करते रहना चाहिए. अगर कैल्शियम का स्तर ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में बढ़कर है तो ऐसी भी महिलाएं ओवेरियन कैंसर के लिए प्रीडिस्पोजिंग होती है. थर्डली जैसे मैडम ने बताया कि स्तनों का कैंसर जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा लेते हैं उनमें स्तन कैंसर होने का खतरा रहता है. लेकिन जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती है उनमें ओवेरियन कैंसर का होने का खतरा बहुत हद तक कम रहता है. फोर्थली अगर किसी महिला की मासिक पाली यानी मासिक धर्म बहुत जल्दी शुरू हो जाए कोई बच्चे की 9-10 साल में तो ऐसी बच्ची अभी आगे जाके ओवेरियन कैंसर के लिए रिस्क पे है या फिर महामारी बहुत लेट जाए, जैसे मासिक धर्म 55 के बाद भी चल रहा है या लेट बंद होता है, तो ऐसी भी महिलाएं ओवेरियन कैंसर के का होने के लिए प्रीडिस्पोजिंग है. देन हमारी डाइट हैबिट, हमारी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, ये सब चीज़ें तो है. वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे अल्कोहल कंजम्पशन,
अदर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स को अगर हम एक्सपोज हैं तो दैट फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवेरियन कैंसर। जैसे कि रेडिएशन एक्सपोजर, किसी महिला का अगर किसी और कैंसर के लिए उसको कीमोथेरेपी चल रहा है या इम्यूनो रेडिएशन चल रहा है, तो ऐसी भी महिलाएं कुछ हद तक या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग पर है काफ़ी दिनों तक, तो ऐसी भी महिलाएं ओवेरियन कैंसर होने के लिए प्रीडिस्पोजिंग है। तो अगर हम किसी भी ये हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो आपने एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद या आपको इस प्रकार के कोई सिम्टम्स काफ़ी दिन तक है तो डॉक्टरी इलाज यानी आप चेकअप के लिए जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि हम ये बीमारी को अर्ली स्टेज पे पकड़ें और अर्ली स्टेज पे पकड़ के इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करके हम इसका फायदा ले सके ट्रीटमेंट का। थैंक यू मैम। सर्विक्स एज वेल एज ओवरी दोनों भी अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोनों पार्ट है, सो इन दोनों में कोई रिलेशन है? लाइक द कैंसर व्हिच इज इन सर्विक्स कैन टर्न इनटू द ओवेरियन कैंसर और समथिंग लाइक दिस, ऐसे कोई रिलेशन है इन दोनों? बेसिकली दे आर नॉट इंटर रिलेटेड बिकॉज जो सेल्स हैं दे आर डिफरेंट। सर्वाइकल जो रहता है बेसिकली इट इज अ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल और उसमें थोड़ा दूसरा ग्लैंडुलर टिश्यू रहता है। सो बेसिकली इट इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हम बोलते हैं। जब एक बायोप्सी ली जाती है और उसका जब हम हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं तो वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या फिर ग्लैंड्स का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे हमको मालूम है कि कोई भी ऑर्गन में एक एपिथेलियम रहता है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है या ग्लैंड्स रहते हैं, तो जो भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट इन्वॉल्व है तो उसका कार्सिनोमा रहता है। बट इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन सर्विक्स टू द ओवरीज बिकॉज दे आर वेरी एडजेसेंट। और अगर मैंने शुरुआत में ही बोला कि जैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्प्रेड, एक तो डायरेक्ट स्प्रेड है, लिम्फेटिक स्प्रेड है और हेमाटोजेनस स्प्रेड है। तो डायरेक्ट स्प्रेड भी हो सकती है, अगर वुमन को सीएस सर्विक्स है तो वो डेफिनेटली ओवरीज को जा सकता है, ट्यूब्स को जा सकता है, अपर पार्ट यूट्रस को जा सकता है और नीचे अगर वो स्प्रेड हो गया तो योनि मानता है वजाइना को स्प्रेड हो सकता है। दूसरा ऐसा है कि अगर लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है वो भी कॉमन रहता है बिकॉज यूट्रस एंड ओवरीज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर अ पार्ट ऑफ द जेनेटिक सिस्टम। तो जैसे लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो भी कॉमन रहता है, तो वहाँ पर भी स्प्रेड हो सकता है। और तीसरा बेसिकली ओवेरियन कैंसर जो रहता है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्सिनोमास लाइक म्यूसिनस सिस्ट एडेनोकार्सिनोमा रहता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, डीजेरेनोमा रहता है। जैसे हमारे ओवरीज में कनेक्टिव टिश्यू और जो ओवेरियन फॉलिकल्स रहते हैं तो उनका अलग टाइप का कार्सिनोमा रहता है। सो बेसिकली इट इज नॉट ऑफ अ सेम टाइप बट इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट, it can spread from the cervix to the ovaries or from ovaries to the cervix. Okay. Thank you, ma'am. There was one more आपने एक पॉइंट बताया था कि there is a pap test especially for the cervix. but जब मैम बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि there is pelvic test. so ये दोनों टेस्ट सेम है या दोनों अलग है या कैसे? Actually जो पैप स्मीयर है वो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम एग्जामिन करते हैं और हम जो रहता है ना गर्भाशय का जो मुंह रहता है वहाँ से हम कुछ स्त्राव जो आता है वो कलेक्ट करते हैं। सो बेसिकली वी कलेक्ट सम सेल्स, म्हणजे मराठीत सांगायचं जर असेल तर आपण एक्झामिनेशन करतो, गर्भाशयाचं मुख पाहतो, एक आरएस स्पॅच्युला असतो छोटा किंवा सायटोब्रश असतो, त्याच्या मदतीने एक गर्भाशयाचं मुखाचं स्क्वॅमो कॉलमनर जंक्शन असतं, तिथून आम्ही काही स्मिअर कलेक्ट करतो, त्याच्या स्लाइड्स बनवतो, ते फिक्स करतो अल्कोहोलमध्ये आणि मग आम्ही ते सायटोलॉजिस्टकडे किंवा पॅथॉलॉजिस्टकडे पाठवतो. सो दॅट इज अ पॅप स्मिअर. पण इवन टू फाइंड आउट वेदर ती जी स्त्री आहे तिला आपण सगळ्यांनी आता ऐकलं की ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस हा खूप कॉमन कॉज आहे गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सरचा किंवा कर्करोगाचा. तर तिच्यामध्ये तो व्हायरस आहे का हे डिटेक्ट करण्यासाठी आपण तिचे HPV DNA टेस्टिंग करू शकतो. म्हणजे आपण तिथून तसंच सेम प्रकारचा स्त्राव कलेक्ट करतो आणि आपण ते पाठवतो टू फाइंड आउट की तिला HPV व्हायरसचं संक्रमण झालं आहे का. आता ह्याच्यामध्ये ना 3-4 व्हायरसच्या स्ट्रेन अशा आहेत. कॉमनली इट इज 16, 18, 6 and 11. हे 4 स्ट्रेन अशा आहेत की त्यांचं जर HPV व्हायरसचं संक्रमण झालं असेल आपल्याला तर आपल्याला मग काही वर्षानंतर गर्भाशयाचा मुखाचा कॅन्सर होऊ शकतो. सो दीज आर द 2 टेस्ट. ओके. पण
जे मॅडम म्हणाल्या की पेल्विक एक्झामिनेशन इज डन विथ द फिंगर्स, म्हणजे आम्ही ग्लोव्स घालतो, नंतर आम्ही इंटरनल चेकअप करतो आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला गर्भाशयाची साईज कसं आहे, गर्भाशयाचं मुखाचं फील कसं आहे, आणि मॅडम जसं म्हणाल्या ना, अंडकोश ज्या असतात ना त्या ऍक्च्युली बाजूला असतात गर्भाशयाच्या, तर त्याच्यामध्ये कुठे काही गाठ लागते का आम्हाला हे बघतो. आता कुठे गाठ लागणं म्हणजे ते काही कॅन्सरच असतं असं काही नाही, पण जसं प्रीती मॅडमने सांगितलं त्यानुसार जर कुठल्याही स्त्रीला गाठ लागत असेल तर मग तिचं सोनोग्राफी करणं किंवा ट्यूमर मार्कर्स करणं किंवा मग पुढच्या टेस्ट करणं हे कंपल्सरी असतं. तर हा फरक आहे पॅप स्मिअर आणि पेल्विक एक्झामिनेशन. थैंक यू मैम. प्रीति मैम, मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? ब्रेस्ट कैंसर यानी हमारे स्तनों का कैंसर. अभी स्तन में जैसे कोशिकाएं अगर बढ़ती है, उनकी वृद्धि होती है, तो वो एक प्रकार का गांठ तैयार कर देती है स्तनों में. तो अगर आपको स्तनों में किसी गांठ का फीलिंग आए कि आपको कहीं गांठ लग रही है, तो आपने डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अब स्तनों में लगने वाली हर गांठ ये कैंसर की ही होगी ऐसा नहीं रहता है. गांठ सादी भी हो सकती है, कुछ हॉर्मोनल गांठ रहती है, कुछ ब्रेस्ट के सिस्ट रहते हैं, कुछ ब्रेस्ट की ग्रंथियों की इन्फेक्शन की वजह से या मिल्क डक्ट के सिस्ट रहते हैं, वो भी गांठ के रूप में फील होते हैं. लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट में गांठ लग रही है और जब आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, अगर आपको ये ध्यान में आए कि ब्रेस्ट के ऊपर की जो चमड़ी है हमारी, अगर उसका कलर चेंज हो गया है, उसमें कुछ लालिमा आ गई है, अगर उसका डिस्कलरेशन हो गया है, तो डेफिनेटली आपको ये सिम्टम्स है, ये वार्निंग अलार्म्स है कि ये सादी गांठ नहीं हो सकती. जैसे हमारे ब्रेस्ट में निपल्स रहते हैं, अगर निपल्स का शेप बदल जाए, निपल्स अंदर की तरफ खींच जाए, जैसे कि रिट्रैक्टेड हो जाए, या आपको जो गठन फील हो रही है उसके साथ में जो हमारा खाक रहता है, यानी बगल का जो हिस्सा रहता है, अगर वहाँ भी आपको गठाने फील होती है, अगर ऐसे कुछ आपको सिम्टम्स, या फिर आपका जो स्तनों का आकार है वो अगर आप अपने आप को कांच में अगर देख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अगर हम खुद को देख रहे हैं कि अगर हमारा ब्रेस्ट का साइज चेंज हो गया है, कोई ब्रेस्ट बड़ा लग रहा है, कोई छोटा लग रहा है, या निपल में से कुछ स्त्राव निकल रहा है, जैसे पीला या लाल रक्त का जैसे स्त्राव निकलता है, तो ऐसे स्त्राव निकलना ये सादी बात नहीं है. अगर ऐसा कुछ भी आपको गांठ लगे, स्किन में कोई बदलाव आ जाए, खाक में गठान लगे, निपल्स का शेप बदल जाए, स्तनों का आकार चेंज हो जाए, अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं या कुछ भी साइंस दिखते हैं, तो आपने तुरंत ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए अलार्मिंग हो सकते हैं. इसलिए आपने तुरंत डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टरी लेट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके आपने उसका निदान कर लेना चाहिए. थैंक यू मैम. वर्षा मैम, मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगी दैट विच आर द ट्रीटमेंट्स वन हैज टू अंडरगो टू गेट क्योर फ्रॉम दिस? एक्चुअली एक बार जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, तो हमने पहले भी बताया है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग ये करना बहुत जरूरी होता है. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय असतं, स्टेजिंग आणि निदान करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. एकदा जर त्याचं निदान झाला की हा कुठल्या प्रकारचा कॅन्सर आहे आणि कुठल्या स्टेजमध्ये आहे, तर त्यावर ऍक्च्युली त्याचा औषधोपचार किंवा पुढील उपचार अवलंबून असतो. तर ह्यासाठी कसं असतं, त्या गर्भाशयाच्या मुखाचा जर आपण विचार केला तर अगदी सुरुवातीची जर स्टेज असेल, म्हणजे अगदी सुरुवातीची स्टेजिंग मध्ये स्टेज म्हणजे कसं असतं, आपल्याला कुठलाही कर्करोग व्हायच्या आधी त्याची पूर्वस्थिती असते. वी कॉल इट ॲज अ प्री कॅन्सर. आणि जर समजा स्त्रिया जागरूक असतील, त्या पर्टिक्युलर पॅप स्मिअरसाठी जात असतील, तर त्याच्यामध्ये एक स्टेज असते की त्याला आम्ही सिव्हिअर डिस्प्लाझिया म्हणतो. आता पॅप स्मिअरमध्ये थोडंसं सांगायचं तर कसं असतं, आपण नॉर्मल सर्वायकल पेशी बघतो की त्या नॉर्मल आहेत की ॲबनॉर्मल आहेत. आता आपण सुरुवातीलाच पाहिलं की अनियंत्रित जेव्हा प्रॉलिफरेशन होतं, कुठल्याही पेशी जेव्हा वाढतात त्याला आपण कॅन्सर म्हणतो. तर त्याच्यामध्ये काही हिस्टोपॅथॉलॉजिकल चेंजेस मध्ये कसं त्याचा साईज वाढलेला असतो, आता आपल्याला मराठीमध्ये माहिती आहे की न्यूक्लियस म्हणजे केंद्र हा पण मोठा असतो आणि इट बिकम्स हायपरक्रोमॅटिक. म्हणजे ते जेव्हा स्टेनिंग करतात ना, तेव्हा ते खूप डार्क आपल्याला दिसतं.
आणि आपण जर समजा हे रुटीन पॅप्समियर केलं आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये जर हे पूर्व कॅन्सर किंवा प्री कॅन्सर स्टेज असते, त्याला सिव्हिअर डिस्प्लाझिया म्हणतो, त्या स्टेजला जर याचं निदान झालं ना, तर फक्त एक छोटीशी आपण बोन बायोप्सी जरी केली तरी तो पूर्णपणे निघून जातो. किंवा ह्याच्यामध्ये दुसरे काही मेथड्स आहेत की जसं आपण गर्भाशयाच्या मुखाला जखम आहे आणि आपण त्याचं कॉन्ट्राईज जरी करून टाकलं तरी तिथून ते पुढे प्रोग्रेस होत नाही, म्हणजे त्याची पुढची स्टेज येत नाही. पण समजा जर आपण पॅप्समियर केलं, त्याच्यामध्ये आपल्याला CA in situ म्हणजे आम्ही त्याला कार्सिनोमा इन सिटू म्हणतो, त्याच्यानंतर मग आपल्याला त्याचं हिस्टोपॅथॉलॉजिकल डायग्नोसिस करणं खूप गरजेचं असतं आणि ते निदान झाल्यानंतर त्याचं स्टेजिंग, मॅडम मगाशी म्हणाल्या की त्याच्यासाठी आपल्याला CT, MRI ह्या सगळ्या गोष्टी करायला लागतात. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपण काय बघतो की कॅन्सर फक्त त्या गर्भाशयाच्या मुखालाच लिमिटेड आहे की तो बाजूला स्प्रेड झालाय. फक्त जर तो गर्भाशयाच्या मुखालाच लिमिटेड असेल आणि तो कुठे आजूबाजूला जर पसरलेला नसेल तर आपण त्याची सर्जिकल ट्रीटमेंट करू शकतो. आता सर्जिकल ट्रीटमेंट म्हणजे काय असतं की त्याच्यामध्ये गर्भाशय, गर्भाशयाचं मुख, दोन्ही गर्भनलिका, दोन्ही अंडकोश हे काढले जातात. सोबतच जो वरचा पार्ट असतो ना योनीचा तो पण काढला जातो. तर ही एक ऍक्च्युली मोठी शस्त्रक्रिया असते. सोबतच मी सांगितलं की तो स्प्रेड होतो कशामुळे, लिम्फॅटिक्समुळे. तर सोबतच थोडं लिम्फ नोड्सचं डिसेक्शन केलं जातं, मग हे हिस्टोपॅथॉलॉजीला पाठवलं जातं. समजा जर मग त्याच्यामध्ये लिम्फ नोड्स निगेटिव्ह आले आणि फक्त ते गर्भाशयाच्या मुखाला लिमिटेड आहे तर दॅट मीन्स इट सेल्फ सर्जरी, म्हणजे फक्त शस्त्रक्रिया हीच त्याची ट्रीटमेंट आहे. पण समजा आपण सर्जरी केली आणि त्याच्यामध्ये थोडा आजूबाजूला स्प्रेड निघाला किंवा लिम्फ नोड जे आपण काढलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसलं तर मग अशा स्त्रियांना पुढचं रेडिओथेरपी पण लागतं किंवा मग त्याच्या पुढची स्टेज असेल आणि जर तो आपल्या शरीरामध्ये दुसऱ्या ऑर्गन्सला जरी इन्व्हॉल्व्ह झालेला असेल तर मग अशा स्त्रियांना किमोथेरपी पण लागते. आणि बऱ्याचदा आम्हाला असं पण लक्षात येतं की जेव्हा स्त्रिया आमच्याकडे येतात तेव्हा आम्ही जस्ट स्पेक्युलम टाकतो आणि बघतो तर गर्भाशयाच्या मुखाला खूप मोठी एक आपण म्हणतो पॉलीफ्लावर एक ग्रोथ असते, म्हणजे खूप मोठी ग्रोथ असते. इट ब्लीड्स ऑन टच, म्हणजे थोडासा जरी त्याला धक्का लागला तरी खूप ब्लिडिंग होतं. आणि जेव्हा मी इन्व्हेस्टिगेट करतो ना तेव्हा पाहतो की हा बऱ्यापैकी स्प्रेड झालेला असतो. तेव्हा ऍक्च्युली देर इज समथिंग कॉल्ड ॲज जस्ट अ पॅलिएटिव्ह ट्रीटमेंट. त्यांना सायकोलॉजिकल सपोर्ट देणं, त्यांच्या आहाराची काळजी घेणं, त्यांना थोडं काउन्सिलिंग करणं, ह्या गोष्टीचा पण ट्रीटमेंटमध्ये समावेश होतो. आणि बऱ्याचदा आम्ही बघतो ऍक्च्युली आतमध्ये पेशंटला पाहिलं आणि आम्हाला कळलं की त्या गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर आहे. सुरुवातीला तर आम्ही अगदी पेशंटला बाहेर थांबायला सांगतो. जेव्हा आम्ही नातेवाईकांना तुमच्या पेशंटला कर्करोग आहे किंवा गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर आहे असं जरी सांगितलं तरी ह्या शब्दाची भीती एवढी असते की त्यांना असं वाटतं की यम आपल्या दारातच उभा आहे, म्हणजे एवढी भीती याविषयी आहे. तर त्यासाठी ऍक्च्युली आपल्याला प्रत्येकाचं जागरूक राहणं खूप गरजेचं आहे. मी सुरुवातीलाही सांगितलं की आपल्याकडे 15 ते 20 वर्ष असतात आफ्टर हॅव्हिंग दी HPV व्हायरस इन्फेक्शन. ह्या पिरियडमध्ये जर आपण डॉक्टरांकडे गेलो, नियमित पॅप्समियर केलं, जस्ट पर्स्पेक्युलम जरी एक्झामिनेशन करून घेतलं तरी आपण हा कॅन्सर सारखा आजार प्रिव्हेंट करू शकतो. तर मला असं वाटतं प्रत्येक मुलीने, प्रत्येक स्त्रियांनी जागरूक असणं खूप गरजेचं आहे. आणि देर इज समथिंग कॉल्ड ॲज अ स्क्रीनिंग फॉर CA सर्व्हिक्स. तर आता ह्याच्यामध्ये काय असतं, वयाच्या 30 वर्षापर्यंत आपण जनरली हे बघा पांढरं पाणी जाणं हा खूपच कॉमन कंप्लेंट आहे. त्याच्यामध्ये कसं असतं, आपल्या तोंडामध्ये जशी लाळ असते तशा प्रकारचा हा स्त्राव असतो जो गर्भाशयाच्या मुखातून किंवा गर्भाशयातून येत असतो. सो इफ यू हॅव जस्ट थोडंसं पांढरं पाणी जात असेल, ते म्युकॉइड असेल, त्याला कुठल्याही प्रकारचा दुर्गंध नसेल तर ते ॲब्सोल्युटली नॉर्मल असतं. दुसरं म्हणजे काय आहे, पांढरं पाणी जाणं म्हणजे आपल्याला कॅन्सर आहे ही भीती पण ठेवणं योग्य नाही. कारण की पांढरं पाणी जातं म्हणजे ते आपल्याला दुसरं संक्रमण पण असतं. कधी फंगल इन्फेक्शन असतं, कॉमनेस्टिस कॅन्डिडा अल्बिगन्स किंवा ट्रायकोमोनिलियल इन्फेक्शन असतं किंवा कुठल्या बॅक्टेरियामुळे इन्फेक्शन असतं. आपण बऱ्याचदा बघतो डिलिव्हरी नंतर आपल्याला जंतूचा जर काही संसर्ग झाला तर आपल्याला स्त्राव झाला. तर स्त्राव जाणं म्हणजेच कॅन्सर आहे असं पण महिलांनी गृहीत धरू नये. पण आपल्याला असा काही त्रास असला तर डॉक्टरांकडे जाणं, चेकअप करून घेणं, निदान करून घेणं. आणि आपल्याला जर 30 वर्ष पूर्ण झाले तर ऍटलिस्ट आपण पॅप्समियर स्क्रीनिंग करायला सुरुवात करायला पाहिजे. आपण पॅप्समियर आणि HPV टेस्टिंग हा दोन्ही कंबाईन करू शकतो. ऍटलिस्ट 5 वर्षात आपण एकदा तरी केलं पाहिजे.
आणि हे आपण वयाच्या 60 पर्यंत करत राहिलं पाहिजे, 60 to 65. आणि जर आपल्या मागील 3 वर्षाच्या टेस्ट जर निगेटिव्ह असतील, HPV निगेटिव्ह असेल, पॅप स्मिअर जर नॉर्मल असेल, तर 65 नंतर आपण हे थांबवू शकतो. पण समजा जर आपल्या मागील 3 वर्षाच्या रिपोर्ट जर काही अबनॉर्मॅलिटीज असतील त्याच्यामध्ये, तर आपण पुढे सुद्धा ते पॅप स्मिअर करत राहायला पाहिजे. पॅप स्मिअर मध्ये काही पॉझिटिव्ह असेल किंवा समजा HPV DNA टेस्टिंग पॉझिटिव्ह असेल, तर मी मगाशी सांगितलं की आपण कॉल्पोस्कोपी करायला पाहिजे. म्हणजे दुर्बिणीद्वारे त्याची मॅग्निफाय करून आपण गर्भाशयाचं मूग बघतो. सोबत मग आपण ते ॲसिटिक ॲसिड किंवा ग्लुकोज आयोडीन टेस्ट करतो. त्याच्यामध्ये जे काही पांढरे एरियाज आम्हाला दिसतात तिथनं आपण बायोप्सी करू शकतो, हिस्टोपॅथॉलॉजिकल डायग्नोसिस करू शकतो आणि त्यानुसार पुढील उपचार करू शकतो. एक चीज़ मैं भी, जैसे मैडम ने बहुत सुंदर ढंग से बताया कि जागरूकता सर्वाइकल मुख के कैंसर के लिए जरूरी है, पैप स्मियर टेस्ट कब करना चाहिए, वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्तनों के कैंसर से रिलेटेड है, जैसे जागरूकता होना, यानी ऐसे स्टडीज में बताया है कि हर महिला ने या हर लड़की ने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की पद्धति सीख लेना चाहिए. अगर हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें तो हम जल्दी अपने अंदर होने वाली गठरान, सूजन को महसूस कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जा सकते हैं. इसलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीखना ये बहुत ज़रूरी है. आप अपने डॉक्टर की मदद से भी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी स्वस्तन परीक्षा ही क्या रहती, ये अगर समझ ले और वो करें तो ये बहुत हद तक हमें स्तनों के कैंसर को डायग्नोस करने में जागरूक कर देगा. और कुछ जैसे अमेरिकन जर्नल में तो ये भी बताया है कि 21 साल के बाद की हर महिला ने हर 3 साल में एक बार स्तन परीक्षा डॉक्टर से करवानी ही चाहिए. अगर हर 3 साल में 21 की उम्र से हम स्तन परीक्षा करेंगे तो कैंसर सर्विक्स को, कैंसर ब्रेस्ट को यानी स्तनों के कैंसर को डिटेक्ट करने में बहुत हद तक हमारी मदद हो जाएगी. मैं डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जैसे हमारे लाइव व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी प्रश्न हमारे पास आए हैं, तो 1-2 क्वेश्चंस हम आपसे पूछना चाहेंगे. Okay, ma'am. So, can menopause be a reason for cancer? No, actually menopause is not a reason for cancer. अगर वैसे देखा जाए तो मैडम ने जैसे बताया कि अर्ली मीनार्की, मतलब जब हमको पहला मासिक धर्म आता है और मेनोपॉज जब हमारा खत्म हो जाता है, तो कोई अगर लड़की को जल्दी प्यूबर्टी मतलब जल्दी मीनार्क हो जाता है और लेट मेनोपॉज होता है, तो ऐसी जो स्त्रियां रहती है इनमें जनरली ओवेरियन कैंसर इज वेरी कॉमन. ओके. दूसरी बात ऐसा है कि एक बार अगर मेनोपॉज हो गया तो जैसे हमारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो 2 हार्मोन्स है जो हमारे अंडकोश में से निकलते हैं, तो उसका सिक्रीशंस बहुत कम हो जाता है. तो बेसिकली एस्ट्रोजन इज अ हार्मोन व्हिच बेसिकली प्रीडिस्पोजेस फॉर अ कार्सिनोमा सर्विक्स. बिकॉज मैंने पहले भी बताया है कि जो लेडीज ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर बहुत ज़्यादा लिए हैं और स्पेशली जिनमें एस्ट्रोजन है, तो दे आर मोर प्रीडिस्पोज. एक बार अगर हमारा मेनोपॉज हो गया मतलब हमारा ओवरीज के कार्य बहुत कम हो जाता है. तो दैट्स व्हाई मैंने पहले बताया कि स्क्रीनिंग जो रहता है वी डू इट इन द एज ऑफ 60, क्योंकि तब तक हमारे ओवरीज बहुत काम करते रहते हैं. और अगर पहले के टेस्ट हमारे नेगेटिव है तो देन वी कैन स्टॉप डूइंग अ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग. तो कैसे रहता है, मतलब मेनोपॉज इज रिलेटेड इन डिफरेंट टर्म्स फॉर द डिफरेंट कार्सिनोमा. लाइक इट इज रिलेटेड टू द, जैसे स्तनों का कैंसर अगर हम देखें तो जिन महिलाओं ने एक्चुअली ब्रेस्टफीड किया है, बहुत ज़्यादा टाइम तक ब्रेस्टफीड किया है, उनमें एक्चुअली स्तनों का कैंसर बहुत कम होता है. तो हर एक वुमेन ने अपने बच्चे को कम से कम, अगर अभी तो हम बोलते हैं कि 6 मंथ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, लेकिन अगर हम देखें ना पहले कैसे रहता था, बहुत ज़्यादा दिनों तक बच्चों को दूध दिया जाता था, तो इसकी वजह से स्तनों का कैंसर बहुत कम रहता था. बट अभी क्या हो गया, एवरीवन इज अ वर्किंग वुमेन, वो बहुत कम छुट्टी उनको मिलती है, बहुत कम टाइम के लिए वो बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती है. तो इसी की वजह से इवन कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज वेरी कॉमन. तो ये उसका रीजन है. थैंक यू सो मच मैम, इट वाज रियली हेल्पफुल. मैम सेकंड क्वेश्चन जो आया है, दिस इज रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर. अगर किसी को दाई साइड में ज़्यादा पेन हो रहा है तो हाउ टू डिफरेंशिएट दैट इट इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर और इट्स जस्ट अ रैंडम पेन.
दाई साइड में पेन होना, मतलब राइट साइड में अगर पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है, तो वो कैंसर ही ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर हमको पेन होता है तो उसके और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं कि हमको पेन क्यों हो रही है। जैसे मैंने आपको इसके सिम्टम्स में बताया था कि अगर हमको कोई गठान फील हो रही है, या शेप बदल गया है, या हमको निपल्स में खिंचाव है, निपल का शेप डिस्टर्ब हो गया है, कुछ उसमें से स्त्राव निकल रहा है, तो ये सब सिम्टम्स कैंसर के फेवर में जाते हैं। जस्ट हमको पेन हो रहा है बाई साइड में और वो कैंसर ही ऐसा नहीं है। अगर आप पेन फील कर रहे हैं तो उसका रिलेशन मासिक धर्म से भी हो सकता है। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ हार्मोनल सिस्ट होती है छाती में जो कैंसर की नहीं होती है, जो मासिक धर्म से संबंधित होती है, यानी मासिक धर्म आने के पहले या जब तक मासिक धर्म चलता है हमको छाती में पेन लगता है, हल्की सी गठान जैसे फील होता है, लेकिन मासिक धर्म के साथ साथ वो गठान निकल जाती है या पेन कम हो जाता है। तो अगर आप इस टाइप का कुछ पेन फील कर रही है मासिक धर्म के पहले, मासिक धर्म चलते हुए या मासिक धर्म के कुछ दिनों बाद, तो आपने एटलीस्ट जाके डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि आप मुझे ऐसे पेन फील हो रहा है, क्योंकि इट मे बी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है तो भी हम ऐसा पेन को फील कर सकते हैं। तो अगर पेन हो रहा है वो बाई साइड में हो या दाई साइड में हो, साइड से कोई उसका रिलेशन नहीं रहता। अगर आप पेन फील कर रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह को ले लीजिए और अपना एग्जामिनेशन करवा लीजिए। Thank you so much. One more question. Is there any specific age for the cancer to occur? एक्चुअली स्पेसिफिक एज नहीं रहता है, लेकिन एज योर एज एडवांसेस यू आर मोर प्रेडिस्पोज्ड टू गेट अ कैंसर। Thank you, ma'am. मैम जैसे नाउ डेज जो यंग लड़कियां रहती है दे आर मोर एक्सपोज टू पीकोस एंड पीकोट, सो इज दैट PCOS एंड PCOD, सो इट इज लाइक रिलेटेड टू कैंसर और समथिंग एल्स? PCOD मतलब क्या रहता है? बेसिकली PCOD अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इट इज रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल, बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया अभी 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड। इवन द स्कूल्स आर मतलब ऑनलाइन, तो घर पे बैठ के बच्चे पूरा स्कूलिंग कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, प्लस डाइटरी हैबिट्स मतलब बहुत हम ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा PCOD मतलब क्या रहता है, जो अंडकोश है उसमें से नियमित ओवुलेशन नहीं होता, मतलब अंडकोश में से स्त्रीबीज बाहर नहीं आता। और क्या रहता है, जब ये स्त्रीबीज बाहर नहीं आता है तो छोटे छोटे सिस्ट, जैसे प्रीति मैडम ने बताया, वो एक्चुअली अंडकोश के पेरिफेरी में जमा होता है। हाउ वी वेयर अ नेकलेस अराउंड आवर नेक, so that way we can see a necklace in the ovaries on ultrasonography and we label it as that the girl or a woman has a PCOD। लेकिन PCOD होना मतलब क्या है, इसके साथ तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहता है। लाइक आई हैव टोल्ड यू कि ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारे फॉलिकल्स हैं जो जमा हो गए हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा मात्रा में अपने बॉडी में सिक्रेशन रहता है, and one stage comes where the estrogen is converted into a androgen, that is a testosterone. So that's why even you must have seen some girls having hirsutism, means they have prominent hairs on the upper lips, या फिर अगर बॉडी पर भी अगर देखा जाए तो मेल टाइप का हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, इसमें इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, and basically even she is more predisposed for infertility, मतलब इवन इनको बंधत्व भी हो सकता है। और PCO और कैंसर का भी रिलेशन है, क्योंकि अगर तुम्हारे शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा है मतलब यू आर मोर प्रीडिस्पोज्ड फॉर द कार्सिनोमा सर्विक्स, इवन CA एंडोमेट्रियम एंड इवन कार्सिनोमा ब्रेस्ट। तो डेफिनेटली इट इज मोर रिलेटेड। इसमें आप यंग गर्ल्स को क्या सजेस्ट करना चाहेगी? हाँ, एक्चुअली इस पे कैसे है, दवा से पहले यू शुड चेंज योर लाइफस्टाइल, सो यू शुड हैव अ गुड हेल्दी डाइट व्हिच योर मॉम प्रिपेयर्स फॉर यू एट होम। बाहर का जो एक पिज्जा, बर्गर, लॉट्स ऑफ आइसक्रीम, ब्रेड, ये जो है ना, ये हमने ठीक है एक आध बार वंस इन अ मंथ इट्स ओके, बट वो हमारा रूटीन नहीं रहना चाहिए। तीसरा है कि तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इवन देयर इज अ रोल ऑफ योगा, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन यूट्राइन एक्सिस, ओके, सो इट इज ऑल रिलेटेड टू द स्ट्रेस।
तुम्हारा जो एक रहता है ना संतुलन बहुत अच्छा रहता है. बट इफ यू आर very anxious person, not doing any yoga, meditation, not doing any exercise, having a bad dietary habits, then definitely you are likely to have a PCO. और अभी हमने सबने देखा है कि एज ऑफ मैरिज बहुत बढ़ गया है, because every girl wants to be independent, she wants to have a good education. उसकी वजह से even infertility is very common. I have told you that after giving a birth to a child, हम breastfeed बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं. तो ये सब रीजंस है. इवन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, क्योंकि जितने ज्यादा अगर हम रोज कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली यू आर मोर लाइकली. हमने देखा है सोनाली बेंद्रे, बहुत सारे जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री से लोग हैं उनमें बहुत सारा कार्सिनोमा होता है. तो इवन यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हैव अ गुड लाइफस्टाइल. डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस द PCOS and with that even carcinomas. Thank you so much, ma'am. Ma'am, can you please say what is the difference between ovarian cancer and ovarian cyst? ओवेरियन कैंसर यानी कर्करोग और ओवेरियन सिस्ट यानी कुछ ऐसी सिस्ट जैसे हमारे शरीर में बहुत सी फंक्शनल सिस्ट भी होती है. अभी मैडम ने बताया कि PCOD में ओव्यूलेशन ही नहीं होता, यानी अंडाशय से अंडरबीज ही बाहर नहीं निकलता. तो कैसा है, हमारे अंडरबीज बनते हैं वो एक फॉलिकल के रूप में तैयार होते हैं, और जब ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो उसमें से अंडा बाहर निकल जाता है. पर अगर ये फॉलिकल रप्चर ना हो तो वो एक फंक्शनल सिस्ट बन जाती है जिसको हम फॉलिकुलर सिस्ट बोलते हैं. तो ये फंक्शनल सिस्ट सारी सिस्ट रहती है जो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से या PCOD की वजह से बनती है. और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हार्मोन करेक्शन की कुछ गोलियां देते हैं, या जब हम आपका मासिक धर्म हार्मोनल टैबलेट के सपोर्ट से रेगुलर करते हैं, तो ऐसे में ये फॉलिकुलर सिस्ट डिसॉल्व हो जाती है. तो दीज आर द सिंपल सिस्ट. सेकेंडली, अगर आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद जो रप्चर हुआ फॉलिकल ओवरी में है, अगर वो फॉलिकल डिसॉल्व ना हो, अगर उसमें कुछ तरल पदार्थ जमा हो जाए, तो उसको हम कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बोलते हैं. जो यूजुअली बहुत से लेडीज, जब बहुत से गर्ल्स शादी के बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के साथ मासिक धर्म रुक जाता है. तो ऐसे प्रेगनेंसी के साथ हमको कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट देखने को मिलती है. तो दीज आर द फंक्शनल सिस्ट. तो हर सिस्ट ये कैंसर नहीं हो सकती, और जो भी सारी सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट या कुछ अदर सिस्ट होती है जैसे डर्मोइड सिस्ट. डर्मोइड सिस्ट आर बिनाइन ट्यूमर्स, जिसको हम बिनाइन ट्यूमर भी बोल सकते हैं. तो डर्मोइड सिस्ट का इलाज अलग रहता है. वो डायग्नोज होने के बाद उसको सर्जरी ही लगती है, या किसी लेडीज में एंडोमेट्रियोसिस हो. अब एंडोमेट्रियोसिस इज अ डिफरेंट डिजीज और डिसऑर्डर, लेकिन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी ओवरी में होती है. दैट आर आल्सो बिनाइन सिस्ट. अब बिनाइन सिस्ट यानी वो सादी सिस्ट है या सादे ट्यूमर्स हैं जिसको अलग ढंग से इलाज की ज़रूरत है. तो दीज आर द सिंपल सिस्ट. तो बहुत सारे सिंपल ओवेरियन सिस्ट हो सकती है जिनके सिम्टम्स हमें, जो मैंने पहले आपको सिम्टम्स बताए जो ओवेरियन कैंसर से संबंधित है, उस टाइप के सिम्टम्स भी इसमें रहता है, जैसे पेट में दर्द, सूजन. तो हर सिम्टम्स कैंसर ही है या हर सिस्ट कैंसर है ऐसे नहीं है. देयर आर फ्यू फंक्शनल सिस्ट, फ्यू बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ ओवरीज, एंड देन द कैंसरस स्टेज. Thank you, ma'am. एक्चुअली ना मैडम ने जैसे भी ओवेरियन फंक्शनल सिस्ट बोली है, वैसे एक्चुअली ब्रेस्ट में भी कुछ सिस्ट रहते हैं. एक्चुअली प्रीति मैडम ने पहले ही बता दिया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ फाइब्रोएडेनोसिस. अभी जब भी हम ऐसे कैंसर शब्द बोलते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जानना जरूरी होता है कि वेदर इट इज अ बिनाइन ट्यूमर और वेदर इट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर इट इज जस्ट अ स्वेलिंग व्हिच कैन बी सर्जिकली रिमूव्ड एंड देन इट इज नॉट कैंसर. क्योंकि घर पे देखते हैं हम, कोई भी अगर महिला को गर्भाशय में अगर गांठ हो तो उसने मतलब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट माउस व्हिच वी लेबल इट एज अ फाइब्रोएडेनोमा बोलते हैं. तो फाइब्रोएडेनोमा जो रहता है ना, ये गठान रहती है अपने स्तनों में, और जो कि अगर डॉक्टर ने देखा या जैसे प्रीति मैडम ने बताया, अगर हम स्व ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, स्वस्तन एग्जामिनेशन करते हैं, और अगर आपको कहीं स्वेलिंग है और अगर वो फ्रीली मोबाइल है, तो देन यू शुड नॉट बी वरीड. You should not be worried. It does not mean that you should not go to a doctor. Go to the doctor, confirm that it's a benign cyst or benign fibroadenoma, or
fibroadenosis, okay, which is related to the hormonal changes. एंड सपोज अगर आपके स्तन में कोई गांठ है जो फ्रीली मोबाइल नहीं है, और मैडम ने ऑलरेडी बताया है पकरिंग है, कोई स्त्राव है, तो फिर उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस एक सिंपल FNAC करके टेस्ट लेती है, मतलब एक जस्ट उसके पहले भी एक्चुअली अल्ट्रासोनोग्राफी और मैमोग्राफी एक टेस्ट लेती है, जिसमें हम पता कर सकते हैं कि ये बिनाइन है या कैंसर है, फिर या फाइब्रोएडिनोमा है या फाइब्रोएडिनोसिस है या कार्सिनोमा है। और उसके बाद अगर सस्पिशियन ऑफ मैलिग्नेंसी है, मतलब कैंसर है, तो फिर उसका FNAC किया जाता है। FNAC एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिसमें एक वाइट बोर नीडल स्तन में डालते हैं अंडर लोकल एनेस्थेशिया, बहुत ज्यादा पेनफुल भी नहीं रहती है, और हम फ्यू सेल्स एस्पिरेट करते हैं ब्रेस्ट में, और जैसे मैंने बताया कि पैप स्मीयर करते हैं, वैसे ही इसका भी एक साइटोलॉजी स्मीयर करते हैं, and we can see whether it is a benign or whether it is a cancer, and then definitely we can plan the line of treatment accordingly. एक चीज़ मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, जैसे बहुत बार OPD में हमारे पास महिलाएं आती है या लड़कियाँ आती है, और हम जब उनको एग्जामिन करते हैं तो हमको समझ में आता है कि गठन बहुत बड़ी हो गई या लेट आई, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये इतने दिन से था, आप क्यों नहीं आए अभी तक? तो बहुत सी महिलाएं या लड़कियाँ ये उत्तर देती है कि मैडम मैं घबरा रही थी कि कहीं ये कैंसर की तो नहीं है, या मैडम मैं डर के मारे मम्मी को बताया ही नहीं, मैंने सिर्फ फ्रेंड से डिस्कस करके छोड़ दिया। या बहुत सी महिलाएं ये भी बोलती है कि मला लाज मैं बीती पोटी आ रही नहीं, मुझे शर्म आ गई। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसे कुछ भी गठन है तो घबराएं नहीं, क्योंकि हर गठन, अभी मैडम ने बताया कि सादा जैसे ब्रेस्ट हार्मोन भी हो सकती है, तो हर छाती में होने वाली या स्तनों में होने वाली हर गठन कैंसर नहीं रहती, लेकिन आप एग्जामिन करके उसका पता कर लीजिए वो बिनाइन है या कैसा है। एग्जामिनेशन करने में डरिए मत, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसको एग्जामिन करिए ताकि हम उसका जल्दी निदान कर सकें और उसका उपचार शुरू कर सकें। थैंक यू मैम। मैम, ब्रेस्ट कैंसर या सर्विक्स कैंसर दोनों 100% क्यूरेबल हो सकते हैं क्या? एक्चुअली वही हम अभी लास्ट 1 आवर से वही बात कर रहे हैं। इफ यू आर अवेयर अबाउट अ डिसीज, या अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उसको 100% क्योर कर सकते हैं। एंड हियर आई टेल यू दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो एक्चुअली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वी कैन प्रिवेंट कैंसर सर्विक्स। अभी हमने इतना सब सुना है कि कैंसर इतना बड़ा रोग है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कैंसर वैक्सीन नाउ व्हिच कैन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। एक्चुअली ये 2 प्रकार के वैक्सीन इवन अभी अपने इंडिया में अवेलेबल है। वन इज बाइवैलेंट वैक्सीन दैट इज अ सर्वैरिक्स, एंड अनदर वन इज अ टेट्रावैलेंट वैक्सीन जो एक गार्डासिल करके अवेलेबल है। और मैं आप सभी व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि अगर हम इसको जितना जल्दी लेंगे उतना हम इसको 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। ये वैक्सीन क्या है? बेसिकली इट इज अ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ओके, व्हिच इज अवेलेबल। तो इसके 3 डोज रहते हैं, एक तो 0, सेकंड डोज इज एट 1 month एंड थर्ड डोज इज एट 6 month, ओके। वी गिव इट बाय इंट्रामस्कुलर रूट इन अ डेल्टॉइड रीजन, शोल्डर रीजन में देते हैं। अगर हम ये तीनों मात्रा ले लेते हैं तो एज एट विच वी कैन गिव इज फ्रॉम 9 to 12 years। और अगर हम ये ले लेते हैं तो फिर क्या होता है? बिफोर यू हैव अ सेक्सुअल एक्टिविटी यू आर ऑलरेडी हैविंग एंटीबॉडीज। अब ये वैक्सीन क्या रहता है? इट इज अ एंटीजन व्हिच इज इंजेक्टेड इन योर बॉडी। इट बेसिकली स्टिमुलेट्स योर इम्यून सिस्टम, इट प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडीज, एंड लेटर ऑन इफ यू हैव अ HPV infection, these antibodies will fight with the HPV virus and will prevent you from carcinoma cervix। तो मेरी सभी व्यूअर्स को ये सलाह है कि जनरली हम अपने घर में बर्थडेज करते हैं, इतना स्पेंड करते हैं। हाँ, थोड़ा सा कॉस्ट डेफिनेटली ये वैक्सीन का ज़्यादा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर एक लड़की ने अपने जब माँ का या सिस्टर का या सासू माँ का बर्थडे रहता है तो शी शुड टेक हर टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, get her examination done, get a breast examination done, get one sonography done, get a pap smear done। और ये मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं हमारे फ्रेंड को, हमारे माता को, हमारे सिस्टर को। एंड दिस इज द
what shared today, ma'am. This is really lovely and very thoughtful. कि हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम सही में हमारे चाहने वालों के लिए केयर करते हैं, and that will be the real gift. If we can prevent a disease, there is nothing like it. और हम सबको मालूम है कि हमारे moms, sisters, friends, everyone have such an important role in our life. तो मुझे ऐसा लगता है ये हमने सबने करना चाहिए. Thank you. और वैसे हर माँ ने अपनी बेटी को, जैसे मैडम ने 2 वैक्सीन बताया है, गार्डासिल या सर्विलैक्स, वो लगा देना चाहिए और उसके 3 डोजेस बराबर याद से ले लेना चाहिए, ताकि हम उसका भी आगे जाकर कैंसर सर्विक्स से प्रिवेंशन कर सकें. प्रीति मैम, इसका कोई पर्टिकुलर एज है? किस एज में ये वैक्सीन हमने लेना चाहिए? इट इज़ मोर इफेक्टिव अगर हम उसको 9 से 12 साल की उम्र के बीच में अगर लड़कियों को लगाते हैं तो इट इज़ मोर इफेक्टिव. फिर ऐसे भी स्टडीज में बताया कि अगर हम 2 डोज भी इसके ले लेते हैं तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव. पर कोई बात नहीं, अगर आप 12 साल के बाद भी इसको ले रहे हैं, जैसे मैडम ने बोला कि लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव होने तक यानी बिफोर मैरिज शी कैन टेक इट, तो हम 26 साल की उम्र तक भी अगर इसको लेते हैं, पूरे 3 डोज लेने पड़ेंगे. तो अगर 26 साल की 14 से 26 के बीच में भी ले लेते हैं तो भी ये इफेक्टिव है. और ये मत समझिए कि 12 साल निकल गया तो अब हम इसको ले नहीं सकते, ले सकते हैं. 26 साल के अंदर आप कभी भी 3 डोजेस पूरे कर सकते हैं. थैंक यू. आज जैसे कि हम राजू इंटरनेशनल स्कूल में बैठे हैं, ऑन अ लास्ट नोट मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो बच्चे हैं उनको एक एड्रेस नोट करके, क्या क्योंकि आजकल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बहुत जल्दी आने लगी है बच्चों को इन ग्रेड 5, ग्रेड 4, राइट. सो मेनोपॉजल एज भी बहुत जल्दी आने के चांसेस है. तो इसमें आप क्या हमारे बच्चों के लिए एक नोट देना चाहेंगे? प्लीज़ शेयर. Actually, I have already told you that your menarche and menopause is related to a hypothalamo-pituitary ovarian uterine axis. Hypothalamus हमारे ब्रेन में रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में रहती है, देन अंडकोश पेट में रहते हैं, बाजू में गर्भाशय रहता है. बट इसके साथ हमारे दूसरी भी ग्रंथि है, जैसे वन ऑफ द कॉमनेस्ट इज अ थायराइड ग्लैंड. तो मुझे ऐसा लगता है कि सबने एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल रखनी चाहिए. यू शुड हैव अ एक्सरसाइज, गुड योगा, टेक केयर ऑफ योर डाइट, देन डोंट गो फॉर स्मोकिंग और अल्कोहल. हमारे कंट्री में इतना कॉमन नहीं, बट इफ यू गो टू गोवा, मुंबई, मेट्रो सिटीज, इवन आई फील वेरी बैड when the young girls are taking alcohol, they are smoking. So I feel we are adopting a Western style. But nowadays, if you see, Western people are adopting Indian style. They are doing lots of yoga, meditation. They are reducing their smoking, alcohol. They are not even taking processed food because we have already told that processed food is one of the predisposing factor. तो हम कैसा है, हम जो देश है उनको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बट वी शुड टेक गुड थिंग्स फ्रॉम देम, नॉट देयर हैबिट्स. वी शुड टेक गुड हैबिट्स फ्रॉम देम. और अगर हम थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सब व्यूअर्स है खुद को टाइम देना सीखो. एवरीबडी इज वेरी बिजी नाउअडेज. सो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी वुमन बेसिकली अ मदर, जसे हम बोलते हैं ना, शिकलेली आई घरादाराला पुढे, तसं मला असं वाटतं की जर हेल्दी आई असेल, घरामध्ये जर निरोगी आई असेल, तर ती तिच्या मुलींना, येणाऱ्या सुनेला, परत तिची जी वृद्ध सासू असेल, आई असेल, त्यांच्या तब्येतीची ती काळजी घेऊ शकते. आणि आई जर तुम्हाला एक योग्य आहार घ्यायला सांगत असेल तर यू शुड नॉट इन्सिस्ट की नाही आम्हाला पिझ्झा किंवा बर्गरच खायचं आहे. तर आपण ह्या गोष्टींची जर काळजी घेतली तर आपण चांगलं आयुष्य जगू शकतो. सो दॅट इज व्हॉट इज आय वॉन्ट टू टेल. अँड दुसरं म्हणजे आता सगळं कसं ऑनलाईन झालं, त्याच्यामुळे आपण घरामध्ये बसूनच असतो, तर थोडंसं फिजिकल एक्सरसाइज करणं खूप गरजेचं आहे. यस, 100% एग्री टू द मैडम कि फिजिकल एक्सरसाइज करा. और मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डेवलप योर ओन हॉबीज, गो प्ले आउटसाइड गेम्स, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द इंडोर एंड ऑल द ऑनलाइन मोडालिटीज लाइक मोबाइल्स, कंप्यूटर्स. दैट इज अ गुड थिंग टू बी इन टच विद द टेक्नोलॉजी, टू गो विद द टेक्नोलॉजी, टू अपडेट योर नॉलेज. पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर वही करें, ऑनलाइन क्लासेस करें. अभी तो कोविड है इसलिए, उसके बाद हम सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही खेलते रहें. देयर इज डेफिनेटली, इफ यू गो आउटसाइड, यू हैव अ गुड हार्मोनल बैलेंस, यू गेट द गुड सनलाइट, यू गेट द फ्रेश एयर. सो आई रिक्वेस्ट एवरी किड्स to have some outdoor activities
spite of indoor activities. And we request all the schools to take these kinds of activities for children, sports compulsory, so that these kinds of disorders can't be seen in children in near future. Thank you so much. Srishti? Even myself and Preeti would like to thank Shilpa ma'am, the principal of Jaju International School, all the staff, and even the students and all the viewers. I hope a few words which we have told will definitely make you aware and reduce the burden of carcinoma, not only in families but also in our country. Thank you. Definitely. Thank you very much. Thank you. You're always welcome. Srishti? It was indeed a nice discussion expressed in a very easy way by you all.